students, so this is our next topic of our chapter cell division, and that is in the cell division we are going to continue the meiosis process. Okay, so in the last topic what we have seen the dikinesis. Okay, in dikinesis there were the homologous chromosome like this, and there were chiasmata formation in that homologous chromosome like this, right? Okay, so this was the last stage that we have studied. In dikinesis, what you can see there is a chiasmata formation. Now you already know what is chiasmata. Chiasmata is the crossing over. What is chiasmata? Chiasmata is the crossing over between the non-sister chromatids of homologous chromosome. I will again repeat it for you. What is chiasmata? It is the crossing over. It is the crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosome. Okay, this is nothing but a chiasmata. So here you can see it is a chiasmata formation. But chiasmata, as you can see, it is shifted at the end. This chiasmata is shifted at the end that we have studied in the dikinesis. So this process is nothing but the terminalization. Terminalization means transfer or shifting of chiasmata at the end of the chromosome between the non-sister chromatid of homologous chromosome. So this is chiasmata, and chiasmata is at the end of the chromosome. Okay, so this was the last stage that we have seen. Now continuing with this dikinesis, next phase. Now here what happened? The prophase is totally completed. This prophase was the phase. This dikinesis was the phase of the prophase. We have seen leptoteny, zygoteny, pachyteny, diploteny and dikinesis. These 5 stages were there in the prophase. Now what happened here? This prophase is now totally completed with the dikinesis. Now we are going to start with the next phase, and that is metaphase. Metaphase 1, as we are studying meiosis 1. So in meiosis 1, this is metaphase 1 after prophase 1. Okay. Now here you can see the nuclear membrane already disappeared. Nucleolus is already disappeared. These chromosomes are there with the chiasmata at the end, terminalization. Now in metaphase, what will happen? Here there was already shifting of this. What is this? This is centriole. The centriole are shifted to the opposite poles, and you can see here the spindle fiber formation that we have seen. Now here the centromeres, the centrioles are exactly at the opposite poles. Now this chromosome will get arranged at the equatorial plane like we have studied in the mitosis. Now here what is going to happen here? This homologous pair of chromosome now get arranged at the equatorial plane. Yes. Now here spindle formation is also there. As you can see, these are the spindle fibers which are arising from the centromere to the centriole. Then other spindle fibers are there. Polar fibers are also there. This is entire spindle apparatus formed here. Okay. Yes. So this is the spindle formation. Spindle fibers. You can see the chromosomes at the equatorial plane. The chromosomes
आर एट द इक्वेटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम जो है वो बीच में इस तरह से अरेंज हो गए हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है फ्रॉम द सेंट्रियोल टू द सेंट्रोमियर। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटाफेज 1. Now next, here still there is a formation of chiasmata, still they are attached with each other. As you can see there, the homologous chromosome with their non-sister chromatids are still attached to the chiasmata, point of attachment. Now next is anaphase 1. Okay, now what will happen in the anaphase 1? These spindle fibers will start contracting to the opposite direction. Okay, so they will pull the chromosome towards their side. So what will happen here? Okay, these were the homologous pair. Now they will start moving like this. These are the centrioles, and from the centrioles to the centromere. These are the spindle fibers. Now what happened exactly here? Here now we can see there is a separation of the chiasmata. The point of attachment gets separated. Okay, so finally chiasmata is separated, but what happened during that separation? There is an exchange of genetic material. We have seen in the Pachytini there was a crossing over like this. We have seen in the Pachytini there was a crossing over, and during that crossing over there is an exchange of genetic material. Okay, so what happened? In between this non-sister chromatid there is an exchange of genetic material, means some genetic material of this pair get transferred to the this. Means for example this is a maternal and this is a paternal. Then some genetic constitution goes to the maternal chromosome and some it get exchanged with each other. Okay, as you can see here, this segment, the one chromatid of the chromosome get exchanged with the other. Yes. Okay, so what happened here? This segment broke and get added into the another chromosome, and the segment of this chromosome get added to the another. So there is an exchange of this the exchange of the genetic material between the non-sister chromatid of the homologous pair. तो ये जो सेगमेंट है वो बदल गया है, यहाँ का एक सेगमेंट यहाँ आ गया और यहाँ का यहाँ पे आ गया, तो उनका जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन था वो चेंज हो गया. मीन्स व्हाट हैपेंड हियर? इट इज अ रिकॉम्बिनेशन. You can see here there is a recombination. उनका ओरिजिनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है. So this is again the very important point during the process of anaphase. anaphase में ये बहुत ही important process है जो present है. उसमें क्या हुआ है? Exchange हुआ है. Like we have studied in mitosis. हमने mitosis में पढ़ा था कि यहाँ पे जो mitosis में क्या होता है, ये जो बीच में this सेंट्रोमियर इट डू नॉट डिवाइड एंड डेवलप. जैसे हमने माइटोसिस में देखा था कि सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, पर यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता. द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द वन पोल एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द opposite pole. For example, if we'll take example, for example there are the 46 chromosome, total 46 chromosome. तो 23 chromosome will move to one pole and 23 chromosome will move towards the opposite pole. आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे homologous पेयर है, तो हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम उसके अपोजिट पोल की तरफ. मतलब ये जो टोटल नंबर क्रोमोसोम है वो हाफ और हाफ इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन, बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू द हाफ. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है? क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेपरेट हो गए, हाफ और इधर, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया मैंने 23 और 23. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या थे?
टेट्राड था क्रोमोसोम का, तो यू कैन सी 2 chromosome are moving towards one pole and 2 chromosome towards the other pole, but that chromosome are recombination with the recombination, मतलब यहाँ का ओरिजिनल कॉम्बिनेशन जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ है। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, एनाफेज जो है वो शॉर्टेस्ट फेज है, सबसे लेस टाइम पीरियड जो है वो एनाफेज के लिए रिक्वायर्ड है। एज यू कैन सी देयर इज अ ब्रेकेज, chiasmata breaks, this chiasmata breaks with the recombination, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो स्टूडेंट्स, अब एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ क्रोमोसोम हाफ और हाफ इस तरह सेपरेट नहीं हुआ है, वो क्रोमोसोम सेपरेट होते वक्त ये जो उनका ओरिजिनल जेनेटिक कॉम्बिनेशन था, मतलब इस क्रोमोसोम का ये सेगमेंट ब्रेक होके दूसरे क्रोमोसोम में चला गया और दूसरे क्रोमोसोम का ये सेगमेंट ब्रेक होके पहले वाले क्रोमोसोम में आ गया, तो इस तरह से एक्सचेंज भी होता है। इसीलिए ह्यूमंस में भी आप देखोगे कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मियोसिस में चेंज होता है। ओके, so this is the anaphase 1, anaphase 1 complete हुआ। What is happening here, these spindle fibers are contracting, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचते हैं, सो यू कैन सी दे आर पुलिंग द क्रोमोसोम एट द सेम टाइम, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था ये इंटर क्रोमोसोमल फाइबर उनको पुश करते हैं, तो फाइनली जो क्रोमोसोम जो है वो अभी अपने अपने पोल की तरफ शिफ्ट हो रहे। नेक्स्ट इज द टीलोफेज, टीलोफेज 1, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ मियोसिस 1। अब फाइनली इस फेज में क्या होगा, फाइनली द क्रोमोसोम रिच टू द अपोजिट पोल्स, ये जो क्रोमोसोम जो है वो अपने पोल की तरफ पहुंच गए हैं, अपोजिट पोल की तरफ। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू द टीलोफेज इज अपोजिट ऑफ द प्रोफेज, तो प्रोफेज में हमने क्या देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होगी, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर होगी लाइक दिस अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, उसके बाद न्यूक्लियोलस आल्सो रीअपियर। ओके, तो फाइनली व्हाट हैपेंड, द ओरिजिनल जो न्यूक्लियस था उससे ये 2 न्यूक्लियाई अब यहाँ पे बन गए हैं। जो ओरिजिनल हमारा सेल था वो इस तरह से था, तो उसमें 4 थे, तो अब फाइनली क्या हो गया है, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बन गए, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपियर हो गए, रीअपियर हो गए, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, तो फाइनली यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, मतलब 1 से 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं। ओके, नाउ यू एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है टीलोफेज के बाद तब स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस आपको पता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड, जैसे कैरियोकाइनेसिस में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस डिवाइड, तो वैसे ही साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। 2 एग्जांपल मैंने बताए हैं, जैसे एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या होगा, फरो फॉर्मेशन, जैसे अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई जो है वो सेपरेट हो गए, अब साइटोप्लाज्म ब्रेक होने के लिए यहाँ पे इस तरह से एक तरह से फरो फॉर्म होगा like this. Okay, that furrow deepens inside from the both side, तो ये furrow जो है वो अंदर की तरफ डीप होती जाएगी और फाइनली it will meet in the center and it will separate the 2 cells from the each other। अब पहले न्यूक्लियाई 2 बनने के बाद अब जो सेल है वो डिवाइड हो चुके, और प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट सेल, तो ये प्लांट सेल है और उसके अंदर ये 2 न्यूक्लिया है,
तो सेल प्लेट जो है, सेल प्लेट डिपोजिशन ऑकर्स इन द सेंटर, दैट सेल प्लेट जो है वो धीरे 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 आइदर साइड में बढ़ती जाती है एंड फाइनली सेल को वो डिवाइड कर देती है इस तरह से। ओके तो एनिमल सेल जैसे हम देख रहे हैं, तो एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन से फाइनली एक सेल से दो सेल, पर यहाँ पे क्या हुआ है, क्रोमोसोम नंबर जो था वो हाफ हो गया है। जैसे अगर 46 क्रोमोसोम थे, 23, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हम स्टार्टिंग से 4 क्रोमोसोम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और 2, तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो चुका है। तो ये फाइनली जो डिप्लॉइड सेल थी, अब ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम नंबर, सेट ऑफ क्रोमोसोम बिकम सिंगल। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द मियोसिस 1 क्या होगा, फाइनली एट द एंड आफ्टर द टेलोफेज 1 फाइनली द सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बिकम 1। तो दो सेट जो थे वो अलग अलग हो गए। ओके सो दिस इज हियर वी कंप्लीट द मियोसिस 1, पूरी तरह से मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है। हमने क्या देखा था, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 में जैसे हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होके कियास्माटा फॉर्मेशन, मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन होता है एंड देन फाइनली एनाफेज में दे गेट सेपरेटेड विद द एक्सचेंज क्रोमैटिड एंड टीलोफेज में फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होती है और 2 सेल्स आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मियोसिस 2। मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में क्या हो गया था, एक जो सिंगल सेल थी उससे 2 सेल फॉर्म हो चुके हैं। ये जो पैरेंटल सेल थी दैट सेल वाज हैप्लॉइड और एक हैप्लॉइड द सेल वाज डिप्लॉइड। अब जो डिप्लॉइड सेल थी उससे हैप्लॉइड सेल बन चुके। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो इस सेल में 23 और 23 इस तरह से क्रोमोसोम नंबर होगा। तो ये जो थे तो ये इस तरह से सेपरेट हो गए। तो मियोसिस 1 में क्या होगा, दिस इज मियोसिस 1। मियोसिस 1 के एंड में क्या होते हैं, 2 सेल फॉर्म हो गए, तो वही सेल हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, देयर वर 2 सेल फॉर्मेशन। नाउ बोथ ऑफ द सेल, दिस सेल एंड अनदर सेल, बोथ ऑफ द सेल अंडरगोज मियोसिस 2। तो जैसे हमने देखा है अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो सिंगल हो गया था, हाफ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये एक सेल और ये दूसरी, लाइक दिस। ओके पर यहाँ पे जैसे हमने टीलोफेज में देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है या फिर न्यूक्लियोलस आ गया है, तो ये जब चेंजेस होते हैं तो ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक जैसे होते हैं। जैसे हमने मियोसिस 1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 2, मियोसिस 2 का प्रोफेज 2, लाइक वी हैव स्टडीड इन माइटोसिस। माइटोसिस का जो प्रोफेज है दैट इज एग्जैक्टली सेम विद द प्रोफेज 2। तो हमने उस प्रोफेज में क्या देखा था, द क्रोमोसोम वेयर लाइक दिस, लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक। तो इस उसी तरह से ये क्रोमोसोम जो है वो इनिशियली लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक होते, लाइक दिस। और वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ओके सो दिस इज द प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में आपको क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंटायर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस इज देयर एंड क्रोमोसोम कैसे है, दीज आर लॉन्ग एंड थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। ओके तो ये प्रोफेज 1 है। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट विल स्टार्ट डिसअपियरिंग। ओके एट द सेम टाइम यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं। ओके तो सेंट्रियोल क्या है, इनिशियली वो एक ही पोजीशन में होते, तो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हो चुके हैं वो धीरे धीरे अपोजिट पोल में धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर यहाँ पे फॉर्म होंगे। और क्रोमोसोम कैसे, लॉन्ग एंड थिन। तो ये जो लॉन्ग एंड थिन क्रोमोसोम है
वो जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होगा दे विल बिकम शॉर्ट एंड थिक लाइक दिस. नाउ दिस इज अ सिंगल लॉन्ग एंड थिन क्रोमोसोम, इट विल बिकम लाइक दिस. ओके, सो इस तरह से. और ये जो मोनाड क्रोमोसोम होगा इट विल बिकम लाइक दिस डायड क्रोमोसोम. ओके, सो नेक्स्ट, so this is the prophase 1 of metaphase 1, prophase 2 of the meiosis 2. अब यहाँ पे क्या होगा, this is the metaphase 2. यहाँ पे क्या है, मेटाफेज 2. अब मेटाफेज 2 में क्या होगा, दोनों सेल में सेम चेंजेस होंगे. जो अभी नए 2 सेल बने हैं आफ्टर मियोसिस 1, तो दोनों ही सेल मियोसिस 2 में एंटर कर चुके हैं. प्रोफेज 2 के बाद अब मेटाफेज 2 स्टार्ट होगा. तो मेटाफेज, जैसे आपको पता है मेटा मतलब सेंटर में, तो ये जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे इस तरह से. ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हियर, यू कैन सी हियर स्पिंडल फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रोमियर टू द सेंट्रियोल. दिस इज द सेंट्रोमियर, राइट. ये सेंट्रोमियर है और ये सेंट्रियोल है. ओके, तो सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर के बीच में इस तरह से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे. नाउ जैसे हमने माइटोसिस के मेटाफेज में देखा था वैसे ही एनाफेज यहाँ पे है सेम. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज यू कैन सी पूरी तरह से डिसअपियर हो गई है. तो धीरे जैसे एनाफेज थी माइटोसिस की, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल है लाइक दिस, ये जो सेंट्रोमियर है दैट विल डिवाइड. अब यहाँ पे क्या है, यू कैन सी दिस इज 1 and 2, 2 क्रोमैटिड. तो ये 2 क्रोमैटिड जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ड्यू टू डिवीजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर. तो वो क्या करेंगे, उनको अपोजिट पोल्स में पुल करेंगे लाइक दिस. ये अलग हो गए. These are the centrioles और ये स्पिंडल फाइबर जिन्होंने क्या किया है, स्पिंडल फाइबर दे आर पुलिंग द क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स देम. तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो गए बीच में से इस तरह से. ओके, तो फाइनली स्पिंडल फाइबर्स आर पुलिंग देम टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. नाउ इन टेलोफेज, this is what, this is anaphase 2. एनाफेज 2 में क्या हुआ है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ है, सिर्फ क्रोमैटिड्स अलग है. यहाँ पे यू कैन सी 1 and 2, तो यहाँ पे 2 इस तरफ और 2 इस तरफ. ओके, नाउ टेलोफेज 2. ओके, अब टेलोफेज 2 में क्या होगा, फाइनली द क्रोमोसोम रीच टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. ये इस तरह से. ये जो क्रोमैटिड्स है वो अपोजिट पोल्स में पहुंच गए हैं. देन रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमोसोम. न्यूक्लियोलस भी फिर से रीअपियर हो जाएगा. जो क्रोमोसोम लॉन्ग एंड थिन थे, वो जो क्रोमोसोम इस तरह से शॉर्ट एंड थिक थे वो फिर से लॉन्ग एंड थिन हो जाएंगे. तो इस तरह से फाइनली टेलोफेज 2 के एंड में यहाँ पे जो क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो गए. ओके, एंड फाइनली एट द एंड नाउ हियर साइटोकाइनेसिस 2. जो पहले हमने देखा था साइटोकाइनेसिस 1 था, तो ये साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा, अगेन जैसे आपको पता है साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. अगर एनिमल सेल है तो यस स्पोरो फॉर्मेशन, यस स्पोरो फॉर्मेशन एंड फाइनली द सेल गेट सेपरेटेड. मतलब ये सेल जो है वो डिवाइड हो जाएंगे एक दूसरे से. तो यहाँ पे इस तरह से 2 सेल बन गए हैं एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस 2. Okay students, so now what we are going to do, we are going to study the overall meiosis, how the meiosis 1 and meiosis 2. Let us revise this first.
In meiosis 2, prophase 2, the chromosome are long, thin thread like. Due to dehydration, they condense and become short and thick. Okay, the nuclear membrane is disappearing, nucleolus is disappearing, there is a duplication of centriole, they are moving towards the opposite pole. Then metaphase means equatorial plane. The chromosome get arranged at the equatorial plane, there is a formation of spindle fibers. Anaphase, the chromosome starts moving towards the opposite pole, but here what happened, the centromere divides. So one in that two chromatid, one moves towards the one pole and one chromatid towards the opposite pole like this. And at the end of telophase 1, the chromosome finally reaches the opposite pole, again formation of the nuclear membrane and nucleolus. Now we are going to study overall the process of the meiosis. Okay, meiosis. So in meiosis 1 starts with the single diploid cell. Yes, this is the single diploid cell. Okay, the nucleus have diploid set of chromosome, means there were two set of chromosome. One and two. Okay, so this is the, in meiosis 1, this is the initial parental cell, you can say called it as a parental cell. This is the parental cell. Okay, and the cell is diploid. Any reproductive cell, you can take example of spermatocytes or oocyte, or in plants the megaspore mother cell, microspore mother cell. So this is the diploid cell. अब इस डिप्लॉइड सेल में क्या हुआ है, मियोसिस स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट्स विद द मियोसिस 1. जब मियोसिस 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है आफ्टर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, तो फाइनली इस सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं. ओके, पर यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया है. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस 1 के कंप्लीशन के बाद ये जो न्यूक्लियस है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे 4 क्रोमोसोम है, तो वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे. मतलब 2 क्रोमोसोम यहाँ पे, means the cell become now haploid, only single set of chromosome. See, in our human body, in human cell there are 46 chromosome, means 23 pairs. तो हर एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम हर एक पेयर का दूसरे सेल में एंटर होगा, तो उसको कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन. ओके, लाइक एग्जांपल, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते तो हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम यहाँ जाता और एक यहाँ पे आता, मतलब यहाँ पे 23 और 23 क्रोमोसोम अगर अंदर होते, इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन सेल. तो उसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मियोसिस इज द रिडक्शनल सेल डिवीजन. रिडक्शनल सेल डिवीजन मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1. ओके, नाउ मियोसिस 2 में अब ये जो नए 2 डॉटर सेल बने, देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल आफ्टर, दीज आर द डॉटर सेल्स which become haploid, half set of chromosome, one set of chromosome. Okay, तो हर एक सेल, both the cell divide simultaneously, फिर से ये divide होंगे like this. अब ये meiosis 2 है, meiosis 2, तो meiosis 2 के end में क्या होगा, this cell will again divide. This cell also divide. ओके, बट हियर यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर था वही क्रोमोसोम नंबर जो है यहाँ पे होगा, बिकॉज मियोसिस 2 इज अ इक्वेशनल सेल डिवीजन.
इक्वेशनल, नॉट रिडक्शनल, इट्स अ इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो यहाँ पे भी वही क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड ही रहेंगे, लाइक दिस। ओके, सेम ये सेल भी डिवाइड होगी दो डॉटर सेल्स में, तो क्रोमोसोम नंबर वही रहने वाला है। अगर यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे भी 23 नंबर ही रहेगा, मतलब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, लाइक माइटोसिस ओनली। ओके, तो जैसे माइटोसिस में होता है वैसे ही मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर जो है वो इक्वली रहता है, हैप्लॉइड सेल से इक्वेशनल सेल डिवीजन से हैप्लॉइड सेल। ये प्रोसेस कब होती है? जब गैमेट फॉर्म होते हैं, स्पोर फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से मियोसिस से एक पैरेंटल सेल से, यहाँ पे एज यू कैन सी देयर आर 4, तो फाइनली मियोसिस 1 के एंड में क्या हुआ है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 दिखाया है, तो यहाँ पे जो नए दो डॉटर सेल बने हैं तो वहां पे 2 और 2 मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। मतलब अगर यहाँ पे 46 होंगे तो यहाँ पे 23 जो होमोलॉगस पेयर है वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप देखोगे मियोसिस 2 के बाद फिर से एक ये सेल जो है वो डिवाइड हो गई 2 सेल में, ये जो पैरेंटल सेल थी वो फिर से डिवाइड हो गई 2 सेल में, पर क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे इक्वल रह रहे हैं। मतलब ये अगर हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड, मतलब ये 23 है तो ये भी 23 ही रहेंगे, लाइक दिस। So this is nothing but the equational cell division. Okay, so at the end of the meiosis there are formation of 4 daughter cell. यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पैरेंटल सेल से पूरा मियोसिस कंप्लीट होने के बाद यू कैन सी हियर देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल, बट नंबर इज गेट रिड्यूस टू द हाफ। तो 46 है तो यहाँ पे 23 23 23 23 इस तरह से 4 सेल बनेंगे। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मियोसिस। Okay, so now we have completed entire mitosis and meiosis. Now we are going to compare the process of mitosis and meiosis, जैसे हमने पहले भी देखा था। अब फिर से एक बार चैप्टर के एंड में माइटोसिस और मियोसिस जो है वो रिवाइज भी हो जाएगा, एंड अगेन वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, लेट अस स्टार्ट। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज द इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। अगर एक सिंगल डिप्लॉइड सेल है तो उससे जो नए सेल बनेंगे वो डिप्लॉइड ही बनेंगे। अगर पैरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर है उतने ही उससे बने हुए सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है वो इक्वल रहता है। देयरफॉर माइटोसिस इज द इक्वेशनल, बट मियोसिस इज द रिडक्शनल सेल डिवीजन। लाइक वी हैव सीन, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे हाफ नंबर हो जाएगा, मतलब इट विल गेट रिड्यूस टू द हाफ। So 23, 23, 23, 23. Okay, so it's a reductional cell division. Next, mitosis occurs only in somatic cell. Somatic cell means body cell or plant vegetative cell which are not reproductive. They are called as somatic cell. But meiosis occur in reproductive cell. For example, oocyte, spermatocyte, microspore mother cell, megaspore mother cell. So these are the diploid cell और उनको कहते हैं reproductive cell. ओके, नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द माइटोसिस, जब माइटोसिस एंड होता है तो एक पैरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो जब कंप्लीट प्रोसेस होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं माइटोसिस के एंड में, बट मियोसिस के एंड में कितने सेल बनते हैं? 4 डॉटर सेल। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द पैरेंटल सेल एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। 1 2 3 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ओके, हियर न्यूक्लियस डिवाइड ओनली 1। माइटोसिस के एंड में क्या होता है? न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, पर एज यू कैन सी हियर दिस इज द 1, एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर से दूसरी बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। तो न्यूक्लियस जो है वो मियोसिस में 2 बार डिवाइड होता है और यहाँ पे ओनली वंस। क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे माइटोसिस में अगर 46 क्रोमोसोम है तो उससे बने हुए दो सेल में उतना ही क्रोमोसोम रहेगा, 46, इसीलिए उसको तो इक्वेशनल कहते हैं। सो क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, बट हियर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू द हाफ, लाइक 46 टू द 23।
न्यूली फॉर्म सेल्स आर आइडेंटिकल, मतलब जो नए डॉटर सेल बने हैं वो पैरेंटल सेल के एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उसके क्लोन्स होते हैं इन माइटोसिस। वेयर एज इन मियोसिस जो नए डॉटर सेल बनते हैं वो पैरेंटल सेल से अलग होते हैं, मतलब उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कब होता है? राइट, ड्यूरिंग द पैकेटिनी। पैकेटिनी में जो क्रॉसिंग ओवर होता है तब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सचेंज होता है और एनाफेज में फाइनली वो सेपरेट हो जाता है विद द एक्सचेंज क्रोमैटिड्स। तो डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम द पेरेंटल सेल। जो पेरेंटल सेल का कॉम्बिनेशन है वो डॉटर सेल में नहीं रहता, वो चेंज होता है मियोसिस में, वेयर एज इन माइटोसिस द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सेम। ओके, माइटोसिस ऑकर्स, द पर्पज और द फंक्शन ऑफ द माइटोसिस इज द ग्रोथ। जैसे मैंने हमारे एक स्टार्टिंग के टॉपिक में बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब माइटोसिस होता है तो सिंगल सेल, फॉर एग्जांपल जाइगोट, तो जाइगोट से मल्टीपल सेल डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं और फाइनली वो ऑर्गेनिज्म बनता है, लाइक सेल, टिश्यूज, ऑर्गन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड अगेन अनदर एग्जाम्पल इज रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए इंजुरी, कोई माइनर इंजुरी है तो वो हिल होती है, मतलब क्योर होती है, तो वहां पे स्किन में अगर इंजुरी है तो वो रिपेयर होगा। ओके, सो रिपेयरिंग एंड हीलिंग प्रोसेस ऑकर ड्यू टू माइटोसिस। और मियोसिस जो है, मियोसिस से क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। जैसे एक डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल है, तो रिप्रोडक्टिव सेल जैसे स्पोरस, जैसे oocyte है तो oocyte डिवाइड होके ओवम बनता है, या फिर स्पर्मेटोसाइट सेल है तो स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके 4 स्पर्म्स बनेंगे। प्लांट्स का अगर एग्जांपल ले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो वो जो डिवाइड होगा तो उससे 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, मतलब वो हैप्लॉइड होंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए और स्पोर फॉर्मेशन के लिए, प्लांट का एग्जांपल ले तो स्पोर फॉर्म होते हैं, एनिमल्स का एग्जांपल ले तो गैमेट्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू मियोसिस, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ओके, तो जैसे हमने देखा था मियोसिस में क्या हुआ था? सिनेप्सिस। अगर आपको याद है तो सिनेप्सिस मतलब क्या? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम दैट ऑकर ड्यूरिंग द जाइगोटिनी। ओके, ये सिनेप्सिस कब हुआ था? जाइगोटिनी, मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो वो मियोसिस में प्रेजेंट है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम दैट इज सिनेप्सिस। और एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंज कब होता है? पैकिटिनी में, पैकिटिनी। तो ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ मियोसिस में प्रेजेंट है। ओके, सो सिनेप्सिस इज देयर, then crossing over is there, exchange of genetic material that occurs during the meiosis. Here no synapsis or no crossing over occurs during the mitosis. Okay students, so here we complete the chapter of the cell division. I will again revise the content of the chapter for you. We have started with the cell cycle, then cell division, we have studied mitosis and meiosis. Okay students, so that's it for today. Thank you.